السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاستی کابینہ میں توسیع، 3 نئے چہرے شامل، 2 SC 1 BC طبقے کو موقع، سماجی انصاف کا دعویٰ۔ کانگریس حکومت میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں، سماجی انصاف کی آواز اٹھانے والا کوئی لیڈر نہیں۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص کا قتل، لڑکی سے ناجائز تعلقات بنی وجہ۔ میڈیگڈا بیرج میں 6 نوجوان غرقاب، دل دہلانے والا واقعہ، تفریح کے دوران گوداوری ندی میں نہا رہے تھے۔ اور امین پور میدک میں نام نہاد گاؤں رکشکوں کی شرانگیزی، ایک شخص شدید زخمی، صدر مجلس کا پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ، مرزا رحمت بیگ نے جائے واقعے کا کیا معائنہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کابینہ میں اتوار کے دن توسیع عمل میں لائی گئی ہے۔ تلنگانہ راج بھون میں ریاستی کابینہ میں توسیع کے لیے حلف برداری تقریب منعقد کی گئی۔ ریاستی گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں 3 نئے وزراء کو حلف دلایا۔ جن شخصیات کو وزارت کا حلف دلایا گیا ہے ان میں اے لکشمن کمار،
वी श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल हैं। इस मौके पर रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। वजीर आला के पास मौजूद कलमदान इनको दिए जाएंगे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि काबीना में शामिल होने वाले अरकान राहुल गांधी की सोच के मुताबिक अवामी हुकूमत समाजी इंसाफ को तरक्की दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तबकाती सर्वे से क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, सवाल करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में कौंसिल इंतखाबात में 5 रुकन कौंसिल और अब काबीना में तौसी में समाजी इंसाफ किया गया है। तबकाती सर्वे करने से अहमियत होती है। रियासत में राहुल गांधी ने रोल मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का तबकाती सर्वे कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। 1.5 साल की हुकूमत के बाद काबीना में पहली बार तौसीक का फैसला किया गया। जुमला 6 अफराद को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3 को ही काबीना में शामिल किया गया। समाजी इंसाफ के लिए पार्टी ने रेड्डी तबके पर रोक लगा दी। 3 के मिन जुमला SC तबके के 2 जबकि BC तबके को काबीना में जगह दी गई है, जिसकी वजह से रेड्डी तबके के कायदीन ने बरहमी जाहिर की है, जिनमें सुदर्शन रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी शामिल हैं। माजी में जिनको काबीना में शामिल करने का तयख्खुन दिया गया था, पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन कायदीन को बनाने में मसरूफ़ हैं। सुदर्शन रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। दूसरी तरफ मल्ला रेड्डी, रंगा रेड्डी ने पहले की तरह काबीना में शामिल न करने पर इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए ये ऐलान करने की धमकी दी। मीनाक्षी नटराजन ने उनसे फ़ोन पर बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करने की गुजारिश की। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर किसी रेड्डी तबके को काबीना में शामिल किया गया तो दीगर तबक़ात से सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे। जहां तक अक़लियती तबके का सवाल है, यहाँ से कोई भी सवाल करने वाला लीडर ही मौजूद नहीं। 1.5 साल की हुकूमत होने के बावजूद अब तक कांग्रेस हुकूमत की काबीना में अक़लियती वज़ीर मौजूद नहीं है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ग्रीन पावर की पैदावार के लिए 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी के लिए याददाश्त मुफ़ाहमत की गई है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2030 तक 20,000 मेगावाट ग्रीन पावर की पैदावार का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बरक़ी तलब को देखते हुए बरक़ी पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना रियासत के लिए 2025 की एनर्जी पॉलिसी लेकर आए हैं। आलमी सतह पर हर पैदावार के लिए बरक़ी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए बरक़ी पैदावार में इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में पैदावार में इजाफे के साथ GDP में इजाफा होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 4,000 एकड़ पर एक जगह पर शमसी तवानाई और हवा से पैदा होने वाली विंड पावर की पैदावार के ज़ख़ीरे को एक जगह रखते हुए बरक़ी पैदावार पहली बार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुस्तक़बिल में ग्रीन पावर के प्रोजेक्ट की फ़रोख्त बढ़ेगी। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय को मुख्तलिफ कायदीन बशमूल वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने खिराज तहसीन पेश किया और उन्हें अजात शत्रु यानी जिसका कोई दुश्मन नहीं करार दिया। बंडारू दत्तात्रेय, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, की किताब प्रजा कथा आत्मकथा की रस्म इजराई के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय ने बड़े ओहदों पर फायज होने के बावजूद कभी भी अपना रिश्ता आम आदमी से नहीं तोड़ा। वो आज भी आम आदमी से जुड़े हुए हैं। उनकी मिलनसारी और हर एक के साथ खुलूस उनकी पहचान है। यही वजह है कि हर कोई उनके बारे में अच्छी राय रखता है। अवामी ज़िंदगी से आने वाली नई नस्लों के लिए दत्तात्रेय एक मिसाल हैं। रेवंत रेड्डी ने दत्तात्रेय के साथ अपने ताल्लुकात को बयान करते हुए कहा कि उन्होंने शख्सी ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, साबिक़ नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और दीगर जमातों के कायदीन ने भी इस तकरीब में शिरकत की और गवर्नर हरियाणा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया और उनके लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। దత్తాత్రేయ గారు ప్రజలతో ఉన్న అనుబంధాన్ని, అత్యంత సామాన్యమైన ప్రజలతో
అది గౌలిగూడ గల్లీ కావచ్చు, లేకపోతే రామ్నగర్ బస్తీ కావచ్చు. వారు మహారాజ్గంజ్ మొట్టమొదటిసారి శాసనసభ్యులుగా పోటీ చేసినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే వారు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రిగా, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా, ఈనాడు హర్యానా అత్యంత కీలకమైన రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా, వారు గౌలిగూడ గల్లీ నుంచి హర్యానా గవర్నర్గా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో ఎన్నో హోదాలను, రాజకీయంగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులను చూశారు. కానీ ఏ రోజు కూడా వారు ప్రజలతో సంబంధాలను కోల్పోలేదు. వారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఢిల్లీకు పార్లమెంట్ సందర్భంలో వెళ్ళినా 2-3 రోజుల కంటే ఎక్కువ అక్కడ ఉండేవాడు కాదు. శుక్రవారం వస్తే మళ్ళీ హైదరాబాద్కే వచ్చి చిన్న షాప్ లోకల్ కార్పొరేటర్ కూడా ప్రారంభోత్సవానికి రావడానికి వెనక ముందు చేస్తే పెద్దలు దత్తాత్రేయ గారు వచ్చి చిన్న గల్లీలలో పాండప్ప కూడా పేదవాడు ప్రారంభించుకుంటున్నంటే దత్తాత్రేయ గారు వచ్చి ప్రారంభించేవాళ్ళు. जुबली हिल्स के रुकन असेंबली और बीआरएस पार्टी के हैदराबाद इंचार्ज मागुंती गोपीनाथ चल बसे। 5 जून को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें गच्चीबावली के एआईजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहां पर उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इतवार के दिन सुबह 6 बजे उनका देहांत हो गया। ये खबर मिलते ही पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर हॉस्पिटल पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गोपीनाथ की मकान पहुंचकर खिराज पेश किया और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। अपोजिशन लीडर और बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर के अलावा साबिक वज़रा ने एमपी एम गोपीनाथ के अफराद खानदान वालों को पुरसा दिया। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने अपने हामियों के साथ अलहदा तौर पर मुलाकात की। गोपीनाथ की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। केसीआर की मुलाकात करने के दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश अपनी अहलिया के साथ गोपीनाथ के मकान पहुंचकर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। पुरसा देने वालों में बीजेपी के ई राजेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शाम 4 बजे माधवपुर डॉक्टर कॉलोनी से उनकी आखिरी सफ़र का आगाज़ हुआ। उनकी आखिरी रसूमात के वक्त पार्टी के कायदीन और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందడమే కాకుండా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన మృదు స్వభావి మా సోదరుడు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు గత కొద్ది కాలంగా అస్వస్థతగా ఉన్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఇవాళ ఉదయం వారు హాస్పిటల్లో మరి మృతి చెందిన విషయం కూడా మాకు ఉదయమే డాక్టర్ల ద్వారా తెలిసింది. నిజంగా ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధిని, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఇక్కడ ఉన్న అందరితో కలివిడిగా ఉండే ఒక నాయకుడిని కోల్పోవడం అనేది అందరికీ కూడా తీవ్రమైన ఆవేదనని, తీవ్రమైన బాధని కలిగిస్తున్న సందర్భం. మీడియాని అదేవిధంగా नुमाइश ग्राउंड नामपली पर मछली की दवा खिलाई गई। मिरक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दवा खिलाई गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने खुद मछली में दवा खाकर इसका इफ्तिताह किया। बथनी खानदान ने मछली में दवा तकसीम की। रियासत के मुख्तलिफ अजला से दमे का शिकार अफराद ये दवा खाने आते हैं। नुमाइश ग्राउंड पर 13 काउंटर्स कायम किए गए थे जहां बथनी खानदान दवा तकसीम कर रहे थे। 2 दिन तक ये दवा तकसीम की जाएगी। इसके लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए। पुलिस का बंदोबस्त भी किया गया। नुमाइश ग्राउंड पर 70 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए ताकि हालात पर कड़ी नजर रखी जा सके। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर कायदीन ने इसका जायजा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कुर्बानी के जानवरों के फजले व बाकियात और कचरे की निकासी के लिए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर 3 रोज़ा खुसूसी मुहिम जारी है। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों राजेंद्र नगर, हसन नगर, काटेधन और मुत्तसिल इलाकों में रुकन कानूनसाज कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग की निगरानी में एडिशनल कमिश्नर बलदिया रघु प्रसाद और उनकी टीम की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मिर्ज़ा अहमद बेग ने कहा कि ईद के दिन सुबह 5 बजे से ही कचरे की सफाई शुरू कर दी गई।
दिन के 10 बजे से कुर्बानी के जानवरों के फुजले और दीगर बाक़ियात को हटाने रात देर गए तक मुहिम जारी रही। ईद के दूसरे दिन भी ये मुहिम जारी रखी गई। पीर को भी ये मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में ये मुहिम जारी है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कुर्बानी के जानवरों के फुजले और बाक़ियात को निशान करदा मुकामात पर डालें और शहर को साफ सुथरा बनाए रखें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ कचरेदान और डंपिंग यार्ड्स का मुआयना किया, जहाँ कुर्बानी के जानवरों के बाक़ियात और दीगर अशिया डालने का मरकज़ बनाया गया था। महकमे बल्दिया की यह मुहिम आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगी, जहाँ से बर वक्त मस्कुरा अशिया और कचरा उठाने का निशाना बनाया गया है, जिसमें BNK कॉलोनी, चंदूलाल बारादरी, काला पत्थर, फातिमा हॉस्पिटल और नवाब साहब कुंटा के अलावा इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में अपने इत्मीनान का इजहार किया। दौरे में शामिल मुकामी मजलिस कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदी मौजूद थे। तेलंगाना के मेडिगड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्काब हो गए हैं। तमाम नौजवानों की उम्रें 20 साल से कम थीं। शादी की तकरीब में शरीक नौजवान तफरी के लिए दरियाए गोदावरी के किनारे नहाने गए थे। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के भोपालपल्ली ज़िले के महादेवपुर मंडल के मेडिगड्डा बैरेज के करीब पेश आया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक महादेवपुर मंडल के अम्बितपल्ली गांव के रिहायशी के घर शादी की तकरीब थी। हफ्ते की शाम तकरीबन 5:30 बजे रिश्तेदारों में से 8 अफराद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मेडिगड्डा पहुंचे। वहां नहाने के लिए एक नौजवान सबसे पहले दरिया में उतरा। जब वो पानी में डूबने लगा तो उसका भाई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी खुद भी डूब गया। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दूसरा भी डूब गया और इस तरह एक के बाद एक 6 नौजवान इसी मुकाम पर पानी में गर्क हो गए। हादसे से बच निकलने वाले एक नौजवान ने तफसीलात बयान की। मुतासिर में से 4 का ताल्लुक अम्बतपल्ली से, जबकि 2 का ताल्लुक कोरलकुंटा गांव से था। पुलिस के मुताबिक हालिया मरम्मत के काम के बायस बैरेज के ऊपरी इलाके में गहरे गड्ढे बन गए थे, जिनकी गहराई तकरीबन 12 फुट तक हो सकती है। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रणहता नदी के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से गोदावरी में पानी का बहाव बढ़ चुका है। हादसे के वक्त दरिया में तकरीबन 4005 क्यूसिक पानी बह रहा था, जिसकी वजह से लापता नौजवानों की तलाश मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू टीमों में गोताखोरों को तलब किया है और रियासती सतह की आफत से निमटने वाली 6 टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। वजीर सीदर बाबू ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद रंजोगम का इजहार किया है, जबकि कलेक्टर राहुल शर्मा और SP करण को फौरी तौर पर तलाशी मुहिम में तेजी लाने के अहकामात दिए गए हैं। रियासत में शरपसंद गौरक्षकों की गुंडागिर्दी जारी है। ताज़ा वाक़े में ज़िले मेहदक के अमीनपुर पुलिस स्टेशन में नामनेहाद गौरक्षकों ने मवेशी लाने वाले एक शख्स को खंबे से बांधकर शदीद जख्मी कर दिया। इसके अलावा ड्राइवर और दूसरे अफराद को भी मारपीट की गई। ये वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया। इस वाक़े की इत्तला पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने SP मेदक और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद दोनों से फ़ोन पर गुफ्तगू की, इसलिए कि इन दोनों पुलिस हदूद में ये वाक़या पेश आया है। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने अमीनपुर और आरजीपुरम पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस बुक करवाया और दवाखाना पहुंचकर जख्मी शख्स की अयादत की। रहमत नगर बोराबंडा के साकिन मोहम्मद गौस कुरैशी संगारेड्डी इलाके से रसीद और दीगर दस्तावेजात के साथ मवेशी ला रहे थे कि शरपसंद गौरक्षकों के टोले ने उन्हें आरसीपुरम के करीब रोक लिया और उनकी बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद शकील साकिन याखुदपुरा की भी मारपीट की, लेकिन उन्हें मामूली जख्म आए। शरपसंदों ने उन्हें गाड़ी के साथ अमीनपुर में वाक़ई गौशाला ले गए और वहां खंभे से बांधकर मारपीट की। यही नहीं बल्कि गौशाला के चौकीदार ने गेट खोलने से इनकार किया तो उसकी भी मारपीट की गई। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद शदीद जख्मी मोहम्मद गौस कुरैशी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिलने पर उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों से रब्ता किया। इतवार की सुबह सदर मजलिस की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग बहरामगोड़ा हॉस्पिटल गए और जख्मी शख्स की अयादत की। वो अमीनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने DSP मेदक प्रभाकर और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकात की और FIR दर्ज करवाया। इस तरह एक और FIR साइबराबाद पुलिस हदूद की आरसीपुरा में भी करवाया गया, इसलिए कि इन दोनों मुकामात पर शरपसंदों ने जराइम का इर्तिकाब किया। मिर्ज़ा रहमत बेग के साथ कॉरपोरेटर जफर खान, हुसैनी पाशा और दीगर कायदीन मौजूद थे। 2 दिन कबल ज़िले महबूबनगर की देवरकदरा में शरपसंद गौरक्षकों ने इजाज़त याफ्ता जानवर लाने वाले अफराद को भी इसी तरह हमले का निशाना बनाया था।
शादरघाट पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने इरशाद अली को अपनी तहवील में लिया है। वाक़े की इत्तला पर साउथ ईस्ट जोन डीसीपी एस चैतन्या कुमार और एडिशनल डीसीपी श्रीकांत और एसीपी सुबीरामी रेड्डी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने बताया कि हफ्ते की रात जजेस कॉलोनी अकबरबाग के इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात के पस मंज़र में इरशाद अली और माजूर शख्स खुद्दूस के दरमियान हफ्ते के दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, जब ये दोनों एक 16 साल लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते थे। लड़ाई झगड़े के दौरान इरशाद अली ने खुद्दूस के सीने में चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया। उन्होंने बताया कि इरशाद और खुद्दूस आपस में दोस्त थे। पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात की जा रही हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती काबीना में तोसी, 3 नए चेहरे शामिल, 2 SC 1 BC, तबके को मौका, समाजी इंसाफ का दावा। कांग्रेस हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं, समाजी इंसाफ की आवाज उठाने वाला कोई लीडर नहीं। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का कत्ल, लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनी वजह। मेडीगुड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्काब, दिल दहलाने वाला वाकया। तफरीह के दौरान गोदावरी नदी में नहा रहे थे।
और अमीनपुर मेदक में नाम नेहाद गांव रक्षकों की शरंगेजी, एक शख्स शदीद जख्मी। सदर मजलिस का पुलिस के आला अहदेदारों से राब्ता, मिर्जा रहमत बेग ने जाए वाक़ा कल किया मुआयना। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।